Hello, good afternoon, student. Today's date 22nd August 2020. Myself Hiro Raval, Standard 8, Subject Science. Chapter number 8, Cell Structure and Functions. In previous lecture, we have studied onion cell and brick wall. We compare both the diagram A and B. So they are similar in brick wall. Then we have studied the number of cells in human body. So there are billion and trillion cells in our human body. Then we have unicellular and multicellular organisms, single cell organisms, unicellular and multicellular organisms, human beings, elephants, fish, etc. And unicellular organisms, amoeba and parameciums. We show the diagram of amoeba and parameciums. Now in this lecture, we have studied shape of cells. What is shape of cells? Refer figure 8.3a. How do you define that the shape of amoeba in the figure? You may say that the shape appears irregular. Amoeba का जो shape है वो कैसा है? Irregular shape है. Amoeba has no definite shape. Unlike other organisms, it keeps on changing its shapes. Observe the projections of varying lengths projecting out of its body. These are called the Pseudopodia. ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. Pseudopodia means के false feet. As you learned in class 7th, this projection appear and disappear as amoeba moves or feeds. Then the change in shape is due to formation of Pseudopodia, which facilitates movement and help in capturing food. जो अमीबा का इरेगुलर शेप है, जो प्यूसियोपोडिया है, फॉल्स फीड की वजह से उसको फूड को कैप्चर करने के लिए जाना पड़ता है, फूड्स को लेने के लिए जाना पड़ता है. तो अमीबा का जो शेप है वो इरेगुलर शेप है. देन अ वाइट ब्लड सेल WBC in human blood is another example of a single cell which can change its shape. But while WBC is a cell, amoeba is a full flagged organisms capable of independent existence. अमीबा जो है वो फुल फ्लैगेड ऑर्गेनिजम्स है. वो इंडिपेंडेंट एक्सीडेंस कर सकता है. मीन्स कि एक जगह है दूसरी जगह वो मूवमेंट कर सकता है. उसका पूरा बॉडी मूवमेंट कर सकता है. What shape would you expect in organisms with millions of cells? Figure 8.4 ABC shows different cells such as blood, muscles and nerve cells of human beings. The different shapes are related to their specific functions. Generally cells are round. Generally cells जो हो वो round shape में होते हैं, spherical और elongated. Some cells are long and pointed at both ends. They exhibit spindle shape. Cells sometimes are quite long. कभी कभी cells जो होते हैं वो बड़े होते हैं. Some are branched, like the nerve cell or a neuron. The nerve cell receives and transfers message, thereby helping to control and coordinate the working of different parts of the body. जो cells होते हैं वो controlling में, working में, कोऑर्डिनेशन से चलते हैं. यहाँ पे डायग्राम में ये जो डायग्राम है उसमें स्पेरिकल रेड ब्लड सेल RBC का डायग्राम है. देन डायग्राम जो बी है वो मसल सेल्स का डायग्राम है. एंड दिस इज़ अ नर्वस सेल. कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव इट्स शेप्स? Components of the cell are enclosed in a membrane. These membranes provide shapes to the cells of plants and animals. Cell wall is an additional covering over the cell membrane in plant cells. प्लांट सेल में सेल वॉल जो है कवरिंग होती है जिसमें सेल्यूलोज और पैक्टिन फ्लूइड फिलअप किया होता है. इट गिव्स शेप्स एंड रिजिडिटी टू दिस सेल्स. ये जो है वो सेल्स को रिजिडिटी मीन्स के मजबूती देती है. बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैज़ अ सेल वॉल. बैक्टीरिया का जो सेल है उसमें भी सेल वॉल है. देन साइज ऑफ सेल्स. The size of cells in living organisms may be small as a millionth of a meter
बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं, माइक्रोमीटर माइक्रोन के, और मे बी एज लार्ज एज अ फ्यू सेंटीमीटर्स. However, most of the cells are microscopic in size and are not visible to the unaided eye. Cells को हम अपने आई से देख नहीं पाते. They need to be enlarged or magnified by a microscope. The smallest cell is 0.1 to 0.5 micrometer in bacteria. बैक्टीरिया का सेल जो है सबसे छोटा है. Then the largest cell 170 mm to 130 mm the egg of ostrich. ऑस्ट्रिच का एग है वो सबसे बड़ा है. The size of the cells has no relations with the size of the body of the animal or plant. It is not necessary that cells in the elephant be much bigger than those in a rat. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि ऐसा नहीं है, साइज़ पे डिपेंड नहीं करता है ना. द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शंस. फॉर एग्जांपल नर्व सेल्स बोथ इन द एलिफेंट एंड रेट आर लॉन्ग एंड ब्रांच. नर्व सेल दोनों में, एलिफेंट हो कि रेट हो, दोनों में सबसे बड़े हैं और ब्रांचेड सेल हैं. दे परफॉर्म द सेम फंक्शन दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज, और उसका फंक्शन भी सेम है कि वो मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं. तो जो सेल्स की साइज़ है, ऐसा नहीं कि भाई उसके एलिफेंट और रेट मीन्स कि उसी इंडिविजुअल साइज़ पे डिपेंड करें. 8.4 Cell structures and functions. You have learned that each living organism has many organs. You have studied in class 7 about the digestive organs, which together constitute the digestive system. Each organ in the system performs different functions such as digestion, assimilations, absorptions. And similarly, different organs of a plant perform specific, means specified, specialized function. For example, roots help in the absorptions of water and minerals. Leaves, as you have learned in class 7, are responsible for synthesis of food. जो मिनरल्स जो होते हैं, यहाँ पे बात की है कि भाई लीव्स जो होते हैं वो प्लांट्स का क्या है, किचन है कि लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट, फूड फैक्ट्री है, तो वो सिंथेसाइज फूड करते हैं. ईच ऑर्गन इज़ further made up of smaller parts called tissues. A tissue is a group of similar cells performing a specific functions. टिश्यू की डेफिनेशन हमने देखी थी, है ना. द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू. जो स्पेसिफिक फंक्शन, हर एक टिश्यू का वर्क जो है वो स्पेसिफाइड किया होता है, अलग अलग होता है. पहली रियलाइज दैट एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यू विच इन टर्न आर मेड अप ऑफ सेल्स. द सेल इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट. जो सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है. फिर अभी पार्ट्स ऑफ द सेल के बारे में देखते हैं. सबसे पहले है सेल मेम्ब्रेन. द बेसिक साइटो कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये फ्लूइड जो है, साइटोप्लाज्म जो है वो फीडअप किया हुआ होता है मेम्ब्रेन के अंदर. देन ऑल्सो कॉल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं. द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम. द प्लाज्मा membrane is porous and allow the movement of substances or materials both inward and outward. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पोरस मेम्ब्रेन है. उसके अंदर क्या होता है, सब्सटेंस अंदर भी आ सकता है और बाहर भी जा सकता है ना. पोरस मीन्स के जिसमें स्पंज की बात करें, स्पंज कैसे होता है, जिसमें जो वाटर है वो फिलअप अपने आप हो जाता है ना, एयर उसके अंदर भर, इसके लिए वो स्मूथ ही है, कॉम्प्रेसिबल है. वैसे ही सेल वॉल ऐसे कॉम्प्रेसिबल होती है. Then activity 8.3. In order to observe the basic components of the cell, take an onion bulb. Remove the dry pink covering. You can easily separate this from the fleshy white layers of the bulb. With the help of forceps or even with your hand, you can break the onion bulb and separate out the thin layers. हमें क्या करना है, ओनियन की जो है स्लाइड बनानी है ना. हमें स्लाइड बना के रेडी करना है ओनियन को. तो इसके अंदर हमें कवर स्लिप ऐड करनी है. कवर स्लिप आप डालो तो आपको देखना है कि अंदर बबल्स नहीं होना चाहिए, है ना. कैसे करना होता है, सपोज ये स्लाइड है एक, ओके, दिस इज़ अ स्लाइड. हमने ये वॉच ग्लास है जिसमें ये ओनियन की पील है,
उसको हमने वॉश कर दिया, वाटर से वॉश कर दिया। देन उसको हमें फोर्सकेप से पकड़ के यहाँ पे ये जो है वो ओनियन के हमने पील रखे। फिर क्या करना है, हमें उसके ऊपर कोई इंडिकेटर ऐड करके ऐसी कवर स्लिप आती है, कवर स्लिप रख देनी है। कवर स्लिप जब रखोगे तब क्या होगा, ज़्यादा जो पानी होगा वो ऐसे बाहर आ जाएगा, है ना, इंडिकेटर। तो यूज़ द ब्लॉटिंग पेपर, हमें ब्लॉटिंग पेपर अप्लाई करके वो पानी जो है वो अब्जॉर्ब कर लेना है। ध्यान रखना है इसमें बबल्स नहीं आने चाहिए, बबल्स जो है उसके अंदर नहीं आने चाहिए। तो ये कवर स्लिप हो गई। ये कवर स्लिप को हमें माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है। द बाउंड्री ऑफ द ओनियन cell is the cell membrane covered by the another thick covering called the cell wall. The central dense round body in the center is called the nucleus. The jelly-like substance, देखो यहाँ पे the jelly-like substance is called the cytoplasm. यहाँ पे दिया है न्यूक्लियस है, then ये साइटोप्लाज्म है। Between the nucleus and the cell membrane are called the cytoplasm. तो साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन हो सकती है, the jelly-like structures between the nucleus and the cell membrane is called a cytoplasm. You have learnt earlier that the cell membrane gives shape to the cell. In addition to the cell membrane, there is an outer thick layer in cell of plants called cell wall. This additional layer surrounding the cell membrane is required by the plants for protections. Plant called need protections against variations in temperature, high wind speed, atmospheric moisture, etc. They are exposed to these variations because they cannot move. Plants जो है वो मूव नहीं हो सकते, एक दूसरे दूसरी जगह नहीं जा सकते. Cells can be observed in the leaf peel of Tradescaceous, Alodia और रेहो. You can prepare a slide as in the case of onion. हम ओनियन की जगह पे ये सारे जो प्लांट्स है उसके भी स्लाइड हम बना सकते हैं. पहेली आस्क भूजो इफ ही कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल. अभी उसको एनिमल सेल देखना हो तो क्या करें, तो एनिमल सेल के लिए क्या किया उन्होंने, चिक सेल्स मेज़र किया है. टेक अ क्लीन टूथपिक एक लेनी है और अ मैस्टिक विद द टिप ब्रोकन. स्क्रैप इनसाइड योर चिक, हमारे चिक के अंदर यहाँ से चिक सेल हमें लेना है. स्क्रैप इनसाइड ऑफ योर चिक विदाउट हर्टिंग इट. प्लेस इट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड, और हमें ग्लास स्लाइड पे रखना है. एड अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन एंड प्लेस अ कवर स्लिप ओवर इट. हमें उसके ऊपर आयोडीन का जो इंडिकेटर है, आयोडीन सॉल्यूशन है, वो उसके अंदर हमें डाल देना है. देन alternatively add 1 or 2 drops of मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन. हमें मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन है वो भी उसके अंदर हम डाल सकते हैं. ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप, और हमें माइक्रोस्कोप के ऑब्जर्व करना है. यू मे नोटिस सेवरल सेल्स इन अ स्क्रैप मटेरियल. तो हमें बहुत सारे स्क्रैप अंदर दिखेंगे. यू कैन आइडेंटिफाई द सेल मेम्ब्रेन, द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. अ सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल. एनिमल सेल में जो है वो सेल वॉल एब्सेंट होती है. दिस इज द डायग्राम ऑफ आवर चिक सेल. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो न्यूक्लियस है, अंदर साइटोप्लाज्म है वो जो राउंड शेप में है वो न्यूक्लियस है. देन सेल मेम्ब्रेन, उसमें कोई फ्लूइड नहीं भरा होता है एनिमल सेल में. तो ओके, एग्जाम में डायग्राम में आ सकता है ह्यूमन चिक सेल. तो ये वाला डायग्राम है ह्यूमन चिक सेल का. एंड प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में आप ये ओनियन सेल जो है वो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो. नाउ cytoplasm. It is the jelly-like substance present between the cell membrane and the nucleus. Various other components or organelles of cells are present in the cytoplasm. These are mitochondria, Golgi bodies, ribosomes, etc. You will learn about them in later classes. हम ये सब के बारे में, गोल्गी बॉडी है, साइटोप्लाज्म, ये सब के बारे में हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड, अगले जो हायर स्टैंडर्ड में वो पढ़ेंगे. देन न्यूक्लियस. इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल. इट इज़ जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल. इट कैन बी स्टेन एंड सीन easily with the help of a microscope. Nucleus is separated from the cytoplasm by a membrane
कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। With a microscope of higher magnifications, we can see a smaller spherical body in the nucleus. हम माइक्रोस्कोप्स के देख सकते हैं कि भाई हमें जो है वो स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी न्यूक्लियस में दिखती है। इट इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियस। इन एडिशंस न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोजोम्स। न्यूक्लियस में जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम क्रोमोजोम कहते हैं। दिस कैरीज जीन्स। हमारे बॉडी में जो डीएनए है ना, डीएनए, आरएनए, रिबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, जो जीन्स है, जो हमारे जीन्स से हमारे जो पेरेंट्स हैं है ना, उससे मिलते जुलते हैं। दिस कैरीज जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। तो ये जीन्स का वर्क है। दिस कैरीज हेल्प द इनहेरिटेंस or transfer of characters from the parents to the offsprings. The chromosomes can be seen only when the cell divides. क्रोमोसोम्स हमें कब दिखाई देता है कि जब सेल डिवीज़न हो तब हमें क्रोमोसोम्स दिखाई देता है। जीन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। जीन इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनहेरिटेंस के लिए जीन्स जो है वो इनहेरिटेंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक यूनिट है। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफ़र ऑफ द हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। वो जो है वो हेरिडिटी, हमारी जो हेरिडिटी है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स को, हमारे मदर या फादर को कोई सिम्टम्स हो वो हमारे में अपने आप ही आ जाते हैं, है ना, तो वो जीन्स की वजह से होता है। It controls the transfer of a heredity characteristics from parents to offspring. This means that your parents pass some of their characteristics on to you. तो हमारे पेरेंट्स के थोड़े बहुत जो फीचर्स है वो हमारे में अपने आप आ जाते हैं, है ना। कोई भी बच्चा है अपने फादर मदर के जो जीन्स है, कभी कभी क्या होता है कि भाई ऐसा नहीं कि भाई उसका चेहरा सेम आए, फेस सेम आए, है ना, इट्स नॉट नेसेसरी। उसके बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, जैसे बोलने का है, कोई ऐसी बीमारी भी है वो जीन्स से आती है, इनहेरिटेंस हो जाए, डायबिटीज़ है, बीपी है, बहुत सारी जो बीमारी है ना, वो डिसीज़ है, वो जीन्स में होते हैं। योर पेरेंट्स, तो दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन टू यू। इफ़ योर फादर हैज़ ब्राउन आइज़ यू मे ऑल्सो हैव ब्राउन आइज़। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे फादर या तो मदर किसी एक की जो आँखें है वो ब्राउन कलर की हो तो आपकी आँखें भी ब्राउन कलर की होती हैं। इफ़ योर मदर हैज़ कर्ली हेयर, जो तुम्हारी मदर के कर्ली हेयर होंगे तो आपके भी हो सकते हैं, यू माइट ऑल्सो एंड अप हैविंग कर्ली हेयर। हाउएवर द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स रिजल्ट इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। जीन्स जो है वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, धीरे धीरे आप आगे जाओ तो जीन्स में जो है वो धीरे धीरे बदलाव आते रहते हैं, है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें बदलाव आते रहते हैं। तो ये जीन्स का है वो आपको याद रखना है ना, व्हाट इज़ जीन। ओके, देन न्यूक्लियस एन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस acts as a control central of the activities of the cell. The entire contact of a living cell is known as a protoplasm. It includes the cytoplasm and the nucleus. Protoplasm is called the living substance of cell. Protoplasm है वो living substance है cell का। Paheli wants to know if the structures of the nucleus is the same in cell of plants, animals and bacteria. उसको पहले को क्वेश्चंस हुआ, वो जानना चाहते हैं कि भाई न्यूक्लियस है वो प्लांट्स में, एनिमल्स में, बैक्टीरिया में, सब में सेम होते हैं। तो ये जो है इंफॉर्मेशन दी है। द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज़ नॉट वेल ऑर्गेनाइज लाइक द सेल्स ऑफ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। देयर इज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. The cells having nuclear material without nuclear membranes are termed prokaryotic cells. वो prokaryotic cells हैं. The organisms with
These kinds of cells are called prokaryotes. Pro means के primitive and karyon means के nucleus. Examples are bacteria and blue-green algae. The cells like onion cells and chick cells having well-organized nucleus with a nuclear membrane are designated as eukaryotic cells. All organisms other than bacteria and blue-green algae are called a eukaryotic cell. तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की बात की है. ओके स्टूडेंट, ये जो वीडियो है ध्यान से आप देखना कि टेक्स्ट बुक लेके बैठना. ओके तो आपको समझ में आ जाएगा. थैंक यू.